So we are ready with another 5 E's lesson plan, and this time I have chosen a topic from 6 science, and the name of the topic is food. Where does it come from? And this lesson I have prepared is about the variety of food. So the learning objectives of this lesson will be I have designed 4 objectives for the same lesson, and the first objective is student will be able to name different kinds of food. Student will be able to name different ways of cooking. And the third one is student will be able to know about vegetarians and non-vegetarians, and student will be able to understand good food and healthy habits. So after fixing the learning objectives, my next step will be learning outcome, and I have written this learning outcome like the learner applies learning of scientific concepts in day-to-day life, like selecting food items in a balanced diet, know different ways of cooking, and healthy food habits. So this will be my learning outcome, and this is the pattern. This is the 5 E's lesson plan, and the 5 E's, as I have mentioned in earlier lessons, that this 5E lesson is based on 5 E's, that is engage, that's explore, that's explain, that's elaborate, and that's evaluate. Okay, these are the 5 E's lesson plan, 5 steps that we have to work on. So first we will discuss about the engage one. So this is for the teacher only, the basic ideas for the teacher. The main aim of the first E, that is engage, is capture students' interest, covers previous knowledge, and encourages questions and critical thinking about the concepts, skill about engagement. So this is for the teacher only. So teacher should note these points while starting the 5E lesson plan, and we will start the lesson with like this. Dear students, let me start my class with a video clip. Here I will show a video clip from my mobile phone to the students, and students will watch it carefully, as we are engaging that's the first step, that's engage, and here we are engaging the students with a video clip. So here I'm going to show you a video clip. You just watch it carefully, and after that we will do an activity. Okay, dear students, let's start. Variety in food. We all like variety in food, so we cook our food in different ways. We can boil and make rice, dal, and vegetables. We can bake and make cakes, biscuits, bread in the oven. We can roast corn, chapati, chicken, and so on. We can even eat raw food like fruits and salad. Some people do not eat meat and fish. They are vegetarians. Those who eat meat and fish are non-vegetarians. Good food habits. We must store our food well. We must always keep the food covered. We should drink 6 to 8 glasses of water every day. We should not be fussy about the food. We should eat everything. We should never waste food. We should complete whatever is in our plate. Everyone must eat fruits and vegetables to stay healthy. We should chew our food well. We must not eat junk food. We should eat healthy food. We must eat balanced diet, food which contains all necessary nutrients like carbohydrates, iron, vitamins, minerals, calcium, proteins, and fats. So after watching the video, teacher will interact with the students for a while, and he will ask them some questions like, what did you see in the video, or what did you observe in the video? I have made a small clip with the students, so let's watch that video. Okay. आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ. I will show you a video. Okay, are you ready? Yes, sir. Okay. So let's start. Okay, you just watch it carefully, and after that we will do some activities. Okay? Yes.
So we have the second step here, that's explore. Explore means to investigate or examine. That's for the teacher. Teacher facilitates discussion as students work together while watching and listening to the students' interaction. So here the teacher will introduce an activity here. He will do an activity with the students. Here the teacher will divide the students in groups. He will distribute the cards among each group. The card will be flashcards. So on each card some variety of food and methods of cooking are written on them. Whatever you are going to teach, just write them on the flashcards or print them on the flashcards and divide the students in two groups and give them the cards. The teacher will tell them to think about two items about the food item written on the card provided to them. The student will think for a while. They will discuss it with the group and they will explore or investigate the things. So they will be provided 2 minutes or 3 minutes. I have just I have already just done this activity with the students, so I have a video clip regarding that. So let me show you a video here, okay? तो dear students, आपने वीडियो देखा? Yes, sir. तो वीडियो कैसा लगा आपको? Very nice. Very nice. Okay. तो क्या नाम है बेटा आपका? अमान। अमान, आप मुझे बता सकते हो कि वीडियो में आपने क्या क्या देखा? हमने देखा वेजिटेबल्स। इधर आ जाओ। वीडियो में आपने क्या क्या देखा? वेजिटेबल्स, हाँ। फ्रूट्स, हाँ। ग्रेन्स, हाँ। पल्सेस ओके। एंड वेरी गुड। अब बैठ जाओ। अब आजा बेटा जोलेम। जोलेम, आप मुझे बताओ कि इसमें आपने वीडियो में क्या क्या देखा? सर मैंने देखा फ्रूट्स, हाँ। वेजिटेबल्स, वेरी गुड। नॉन वेजेस। ओके गुड। पिता, आप मुझे बता सकते हैं क्या आपने देखा? यस सर। क्या देखा आपने? हमने इसमें फ्रूट देखे, हाँ। वेजिटेबल्स देखे, ग्रेन्स देखे, पल्सेस देखे। गुड, वेरी गुड। सो बेटा, आज का जो फूड टॉपिक है वो हमारा फूड ही है, क्योंकि आपने बहुत सारे किस्मों के फूड देखे ना। तो आज हम बात करेंगे वैरायटी ऑफ फूड, कि फूड की कितनी किस्में होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज फूड। फूड किसको कहते हैं? कोई भी चीज, कोई भी चीज। फूड इज एनी सब्सटेंस कंज्यूम्ड टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन। कोई भी चीज जो हमको खाने से न्यूट्रिशन देगा, ताकत देगा, तो उसको हम बोलते हैं दैट इज फूड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फूड। वेरी गुड। तो आज हम बात करेंगे फूड के बारे में कि कौन सा फूड कैसा होता है और हमको कौन सा फूड खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। ठीक है बेटा? हम एक एक्टिविटी करेंगे। ठीक है बेटा? आपके साथ एक एक्टिविटी करेंगे। तो मैं ग्रुप्स बनाऊंगा। तो ये दो बच्चे लड़कियां जो है वो एक ग्रुप बनाएंगे, ये और ये दूसरा ग्रुप बनाएंगे, और ये तीसरा। तो 3 ग्रुप हमारे बन जाएंगे। ठीक है ना? तो बेटा आपको मैं दूंगा कुछ कार्ड्स। मेरे पास कुछ कार्ड्स है, तो आपको हर किसी ग्रुप को एक एक कार्ड मिलेगा और आपको मिलेंगे 5-5 मिनट इसको सोचने के लिए। 5 मिनट बहुत ज्यादा है क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो हम आपको 2 मिनट देंगे। ठीक है बेटा? तो 2 मिनट में आप सोचेंगे कि जो भी आपके पास कार्ड है, जो भी इस पे लिखा है, उस पे आप 2 चीजें सोचेंगे। कितनी चीजें? और मुझे वो फिर बाद में बताएंगे। ठीक है बेटा? हाँ। तो आपको मैं बताऊंगा, ये आपको कार्ड मिला। आप दो को मिला ये वाला कार्ड है, ये वाला कार्ड रॉ फूड का, और आपको मिला है ये नॉन वेजिटेरियंस का आपको कार्ड मिला है। ठीक है? ओके। 2 मिनट जो होते हैं आपके स्टार्ट होते हैं। So after explore, there is third point, that is explain. So I will call each group leader and I will use varied questions or techniques to help students connect their exploration to the concept under examination. Okay, so here what I will do, student or group leaders will come one by one on the stage and they will explain their ideas and they will share it with other students. I will facilitate them and I will tell them to listen each other's findings. Okay, each group leader will come in front of the stage and he will elaborate, he will
explain his findings and others will listen it carefully. And here let's see another video with the students so that you will be aware about the concept of explain. So let's see a video. मिनट हो गए हैं, तो आपने किया पूरा? यस सर। ओके, तो ग्रुप ए के जो लीडर है कौन है, उनको मैं यहाँ पे बुलाऊंगा और वो मुझे बताएंगे। इधर आ जाओ। ओके, आप मुझे बताओ कि आपको कौन सा कार्ड आया था? उनको बॉइलिंग पे आया था। इन्हें वीडियो में देखा था कि कौन सी आपको वो फूड बताना है जो हम बॉयल करते हैं। दो चीजों के नाम आप बताओ। एग, राइस। एग और राइस। इसका करेक्ट आंसर आप बैठे बताओ। तो ग्रुप बी में से कौन आने वाला है? अच्छा, ओके, ग्रुप बी में आपको क्या आया था? रॉ फूड। इनको आया था रॉ फूड। तो आप मुझे दो चीजों के नाम बताओ, दो फूड के नाम बताओ जो हम रॉ खाते हैं, कच्चा खाते हैं। एप्पल, कुकम्बर। एप्पल और कुकम्बर, दैट इज द राइट आंसर। गिव मी द कार्ड। ओके, नाउ ग्रुप थर्ड में से कौन आने वाला है? इधर आ जाओ। आप मुझे बताओ कि आपको क्या आया था? नॉन वेजिटेरियन। इसको नॉन वेजिटेरियन आया था। तो नॉन वेजिटेरियन में पहले बोला नॉन वेजिटेरियन किनको हम बोलेंगे? नॉन वेजिटेरियन वो लोग होते हैं जो सब्जियां नहीं, ये मीट खाते हैं। गुड। नॉन वेजिटेरियंस वो होते हैं जो सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं खाते हैं, जो खाली खाते हैं मीट, चिकन, फिश, ओके, और एग्स वगैरह। तो उनको हम बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियंस भी एग्स खाते हैं, लेकिन हम ज्यादा मेन नॉन वेजिटेरियन में रखते हैं मीट, फिश और चिकन, ठीक है ना। वो ये सब नहीं खाते हैं, ठीक है ना। वो ये सब खाते हैं, सब्जियां नहीं खाते हैं ज्यादा, उनको हम नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं, ठीक है। तो आप मुझे कोई नॉन वेजिटेरियन फूड्स के नाम बता सकते हो? यस सर। क्या? मीट और चिकन। मीट और चिकन इज द राइट आंसर। यू हैव डन फैंटास्टिकली। ओके, तो हबीब के पास क्या है? वेजिटेरियन। आप मुझे बता सकते हो वेजिटेरियन किनको बोलेंगे? मैंगो, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल, पीच। पीच। गुड। फ्रूट्स के नाम बताए तो ये वेजिटेरियन जो है वो फ्रूट्स भी खाते हैं, ठीक है ना। गुड। आप बैठो बेटा, आप बैठो अपनी कुर्सी पे। So after the third point explain, so we have another fourth point, that is elaborate. Elaborate, that's for the teacher here, designed to help students extend their understanding of the concept in new situations. So here I have a presentation about this elaboration. Here the teacher will elaborate the topic by providing some additional information. He will add some more examples with the examples or findings that students already explained. He will mix his own ideas and the ideas provided by the students. So the teacher will make use of TLM here, like teaching learning material of food and its variety. He will elaborate the topic by showing and explaining them with the help of charts, with the help of flashcards, with the help of original and artificial fruits. He will also make use of junk foods and explain its bad effects. He can explain it with the photographs, whatever is having the TLM, so he can use it. So let's see another video. Okay, तो नाउ ये हमारा एक्टिविटी हो गया। तो एक्टिविटी में हमने बहुत कुछ सीखा है ना, आपने भी बहुत कुछ बताया। तो इसको मैं और ऐड करूंगा, ठीक है ना। ऐड क्या करूंगा मैं जैसे कि हमने अभी पढ़ा बॉइलिंग, ठीक है। तो बॉइलिंग जो है वो हम बॉइल से कराने आपस में ग्रकना चीज। तो कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो हम बॉइलिंग में, आपको बहुत कुछ पता है, लेकिन मैं आपको ऐड और कर रहा हूँ कि बॉइलिंग में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। बॉइलिंग में बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको हम बॉइल करके, जैसे इसने बताया अभी, फिजा ने क्या बताया? राइस को हम बॉइल करते हैं पानी में, है ना। तो पानी के बगैर हम उसको रोस्ट कर सकते हैं? वो बहुत हार्ड होता है ना। जैसे दाल होती है, उसको हम फ्राई करेंगे तो फिर खाएंगे नहीं, उसको हमको जरूर क्या करना होता है? पल्सेस भी बहुत सारी किस्म की होती है, जैसे दाल है, राजमा दाल, मूंग दाल, चना दाल, इसको खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनको खाना चाहिए, ठीक है ना।
जैसे मीट है, मीट को हम बॉयल करेंगे, मीट को हम पहले रोस्ट भी करेंगे, उसको खाएंगे, उसको हम बॉयल भी करते हैं, लेकिन पहले रोस्ट करना उसको बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चिकन को हम रोस्ट करते हैं, रोस्ट करूं क्या वो रोस्ट पता है किसको बोलते हैं, किसको, नहीं फ्राई नहीं, रोस्ट हो गया, हाँ एक किस्म का फ्राई होता है, लेकिन उसको हम बोलते हैं ऐसे बनाना चाहिए बुजुन, हाँ बुजुन सुना कैसे बनवाना, जैसे कि मकाई, हाँ जैसे मकाई हम रोस्ट करते हैं, जैसे चोटासान चपाती होती है ना, उसको जैसे चिकन होता है उसको हम रोस्ट करते हैं, ठीक है ना। हाँ बजान से इसको पच खेवान, क्योंकि बजन अलग टेस्ट युवान, ठीक है ना। जो पुराने अर्ली मैन के लोग थे वो ऐसे कच्चा मीट खाते थे, फिर एक बार इंसिडेंटली उनको फायर में गिर गया, जब फायर का ये वाला इन्वेंशन, फिर जब वो फायर में गिर गया एक मीट का पीस, जब उन्होंने वो खाया उनको बहुत ज्यादा टेस्ट लगा, तो फिर वहां से रोस्टिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। तो रोस्ट हम करते हैं, मैंने इसमें बोला था अभी, जैसे बेक हम करते हैं, हमारे पास ओवन होता है तो उसमें हम बेक करते हैं, जैसे हम केक्स बनाते हैं, जैसे हम पेस्ट्रीज बनाते हैं, जैसे हम ब्रेड बनाते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम रोस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी फूड वैरायटीज लिखे हैं, तो आप मुझे बता सकते हो विच फूड विच वी बॉयल, कौन सा फूड होता है जो हम बॉयल करते हैं, एग, राइस, तीन हम आपने दो बताए थे, हम इसमें और एक ऐड करेंगे, जैसे दाल और क्या बताया, एग और राइस, ओके। सो कौन सा फूड जो है वो हम ईट करते हैं ऐसे रॉ, कच्चा खाते हैं, जैसे इसने बोला था अभी, कच्चा कौन सी चीजें खाते हैं, कुकम्बर, एप्पल, जैसे फ्रूट्स बहुत सारे होते हैं जिनको हम कच्चा खाते हैं, वेजिटेबल्स बहुत सारे होते हैं जिनको हम कच्चा खाते हैं, जैसे कैरेट भी खाते हैं, कुकम्बर भी खाते हैं, हम उनको वेजिटेबल्स नहीं डालेंगे। बहुत सा फूड ऐसा होता है जो हम कच्चा खाते हैं, एक और बताओ फूड का नाम जो हम कच्चा खाएंगे, टोमेटो खाएंगे, और वेजिटेबल और फ्रूट्स के एक्स्ट्रा कौन हम ऐसे ही कच्चा खाएंगे, मैंगो तो फ्रूट में ही आता है ना, हाँ शाबाश, ट्राई करो, कैरेट भी वेजिटेबल में ही आता है, मेनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है वो हम ज्यादा कच्चा ही खाते हैं ना, हाँ क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो अगर उनको हम बेक करेंगे या उनको कुक करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे, इसलिए बेटर है कि उनको कच्चा ही खाओ। जैसे फूड विच वी बेक, जो मैंने भी बताया, जो हम बेक करते हैं, कौन सा फूड हम बेक करते हैं, केक, ब्रेड, पेस्ट्री भी केक ही होता है, तो हम इसको एक और ऐड करेंगे, कौन सा हम बेक करेंगे, बर्गर है, पिज्जा है, ठीक है ना, हाँ जो हम बेक करते हैं। फूड विच वी रोस्ट, कौन सा हम रोस्ट करते हैं, बुजान से फ्राई करा, कॉर्न हम करते हैं, चिकन करते हैं, चपाती करते हैं, हो गए ये तीन फूड्स, ठीक है। ओके, एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, हेल्दी फूड हैबिट्स। हेल्दी फूड हैबिट्स क्या होते हैं, अच्छे खाने के तरीके। तो हमको हमेशा जो भी खाना खाना चाहिए उसको बराबर च्यू करके खाना चाहिए, क्योंकि च्यूइंग से वो डाइजेशन अच्छा होता है, और जब भी खाएंगे माउथ बंद करके खाना होता है, ऐसे आगा नहीं, माउथ बंद करके, और राइट हैंड से खाना चाहिए, ठीक है ना, नीचे नहीं गिराना चाहिए, टेबल मैनर्स का खास ख्याल रखना है। और जो भी हम फूड स्टोर करेंगे, फूड स्टोर मतलब कोई खाना बचता है उसको ऐसे ढक्कन के बगैर नहीं रखना है, उसको हम रखेंगे ऊपर से ढक्कन, और रोज हमको पीने हैं पानी पीना होता है ना, तो आपको पता है कितने गिलासेस का पानी पीना होता है जिससे हम हेल्दी रहेंगे, yes 6 to 8 glasses of water we should drink every day so that we will be healthy, okay, ठीक है। और कोई फूड हैबिट आप बता सकते हो, आप ऐड करना चाहते हो, we should wash our hands before eating and after eating meals, और कोई, ओके, यस, हमें खाना खाने से पहले पानी पीना चाहिए, खाना खाने के बाद, खाने के बाद भी पी सकते हैं, लेकिन खाने के बिटवीन नहीं खाना चाहिए, पानी नहीं पीना। एक और चीज ऐड करूंगा, बिस्मिल्लाह भी कहना चाहिए, वरना शैतान हाँ मॉरल, ये एक मॉरल भी इसने बताया कि हमको खाने से पहले बिस्मिल्लाह भी करना चाहिए, ठीक है ना, हाँ वेरी नाइस, गुड। तो एक और
चीज मैं ऐड करना चाहूंगा जो मैंने अभी बताया, जो आपने भी बताया था, वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस. Vegetarians are those people who only eat vegetables and plant products like fruits, like vegetables and other things. They are known as vegetarians. And non-vegetarians are those people who do not eat plants and plant products, like they eat meat, they like to eat fish, they like to eat chicken. Okay, so these are known as non-vegetarians. Okay, vegetarians and non-vegetarians. Okay dear students, तो मेरे पास ये फ्रूट्स है, ठीक है. ये कौन सा फ्रूट है? ये फ्रूट्स खाने से हमारे अंदर बहुत ताकत आती है. इसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो हमको खाना चाहिए. जैसे मेरे पास ऑरेंज है तो इसमें विटामिन सी होता है, इसको खाना बहुत जरूरी है. हमको ये जो जंक फूड है ना, इनको हम बोलते हैं जंक फूड. क्या बोलते हैं? जंक फूड. पता है किसको बोलते हैं? जो हमारी सेहत के लिए, हाँ, मिलावटी चीजें जिनको खाने से बहुत नुकसान होता है, हमारी सेहत को बिगाड़ लेते हैं. तो इनको हमको अवॉइड करना चाहिए. हमको कभी भी ये नहीं खाना, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉक्सिक्स होते हैं. तो हमको हमेशा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही खाने चाहिए, ठीक है ना. ये हमारे पास फ्रूट्स और वेजिटेबल. कौन सा वेजिटेबल है? पोटैटो. ये कौन सा? टमाटो. इसको लिखा भी है. ये कौन सा है? पीस. ओके, सो ये मेरे फ्रूट्स है. ओके, कौन सा है? मैंगो. ये कौन सा है? पपाया. तो बहुत सारे फ्रूट्स हैं. तो मैं आपको ये देखो, ये भी फ्रूट चार्ट है. हमको फ्रूट्स खाने चाहिए, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेटा, ठीक है. तो ये हमारे पास एक वेजिटेबल की बुक भी है, फूड्स की बुक भी है. तो ये आप और पढ़ेंगे, हम इसको और इलॉबरेट करेंगे, ठीक है ना. ठीक है बेटा. After elaborate, we have the final step, that is evaluate. Okay, that's the fifth E, evaluate. Here the teacher will assess students' progress through observation and presentation. Also, the teacher will discuss the questions like, what is this? How is this? Why do you feel so? How do you feel so? Etc. I can use very techniques in order to assess the students. So, the teacher may ask some questions about the topic like, how can we say that the boy or girl eating food is vegetarian? That's the first question that we can ask the students. So how is rice or dal cooked? What is its method? Okay, so name any 2 food items that a non-vegetarian eat. How do you say so? So name any 2 food items which can be roast. Name any 2 good healthy food habits. So after answering these questions, okay, that was the final stage. So teacher can say goodbye here. He can give give students some homework, home task to complete at home. So I have another video for you in which I have this explained. The evaluation section, E section. So let's see it. I will ask you some questions. Okay? Shall I? Okay. You are a good student. कौन उठेगा? आप उठो बेटा. आप मुझे बताओ कि वेजिटेरियन जो होते हैं वो कौन लोग होते हैं? वेजिटेरियन वो लोग होते हैं जो सब्जियां खाते हैं. वेरी नाइस. वेजिटेरियन वो लोग होते हैं जो सब्जियां खाते हैं. सिट डाउन बेटा. खड़े हो जाओ बेटा. अब मुझे 2 चीजों के नाम बताओ जो हम बॉयल करके खाते हैं. राइस. शाबाश. वेरी गुड. राइस एंड एग्स. नाइस. तो आप मुझे बताओ बेटा, आप मुझे बताओ नॉन वेजिटेरियंस किनको हम बोलेंगे? नॉन वेजिटेरियन वो होते हैं जो मीट खाते हैं, सब्जियां नहीं खाते हैं. गुड. आप खड़े हो जाओ बेटा. आप मुझे बताओ कोई 2 फ्रूट्स के नाम मुझे बताओ. एप्पल और बनाना. गुड. आप अमान उठो. आप मुझे बताओ वेजिटेरियंस कौन होते हैं? Those people which eat only vegetables and fruits. Very good. वेजिटेरियन हम बोलेंगे. अब मुझे गुड फूड हैबिट बता सकते हो? Yes, we should wash hands
before and after eating meal. वेरी नाइस। तो आपने कितनी सारी चीजें देखो, ये मेरे Yeah, the teacher, that is the TLM teaching learning material required, as I have mentioned earlier, that it's flashcards. You need flashcards. You need different kinds of food like rice, dal, bread, fruits, vegetables, etc. You need food chart. You need junk foods. So here is the note for the teacher. The teacher can use the TLM as per the availability of the resource, whatever resource he is having. So he can use it in this chapter, in this topic. So hope you like the video. Hope you enjoy the video. Hope you will do this video, will do this activity, do these activities with the students, and you will try that module with the students. Inshallah, we will meet again with another lesson plan about 5E or 5-step or whatever. So thank you so much for watching, and subscribe our channel too, and share it with the students so that they will get benefit or they will get some help. Okay, Allah Hafiz. Thank you so much.